Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. Today, in this video of class 7th biology, we'll be moving further ahead with the chapter 12 of your book, Transportation of Materials in Plants and Animals. We'll be saying this chapter कैसे हमारे बॉडी में मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजनस वेस्ट का कैसे इनका मूवमेंट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के थ्रू. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. टू स्टे अलाइव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स लाइक फूड, water, oxygen to various parts of the body. Now what happens for proper growth of our body, for proper development, for proper functioning of our body, we need food. We need that all the systems of our body, जितना भी system है हमारे body का, ये properly function करे. ठीक है, then only we can be alive, then only we can lead a proper life. Clear? Food and oxygen are transported to all the cell in the body for respiration and growth. और food और oxygen supply क्यों होता है? For the process of respiration and growth. And waste products are transported from the cells to the organs that excrete them. और waste product जो हैं जो हमारे body में हैं उनको हमारे body से बाहर निकालने की ज़रूरत है so that there is no harm to our body. And these are done with the help of a system that is called as excretory system. So today we'll be studying about two systems. First system will be circulatory system that will lead to the circulation, and next will be excretory system that will lead to the removal of the nitrogenous waste. Clear? Transportation of materials in plants. So this we are starting the circulatory system, how circulation of substances, how transportation of substances takes place. Clear? See, flowering plant have well developed transport system called vascular system. और flowering plants में क्या होता है? They got a well developed system that transports water and minerals. हमारे जो plants हैं, plants में क्या होता है? They've got a tube like structure for the proper transportation of water and minerals. And this together they form what? They form vascular system. Vascular system का दो main component है. First is xylem and second is phloem. We have got two main components of vascular system that includes xylem and phloem. Clear? The cells of xylem are joined end to end forming long tubes which extend from the tip of the roots to the tip of the leaves. और xylem का काम क्या है? To transport water and minerals. Now you can yourself tell me that water और minerals plants को कहाँ से मिलते हैं? Root से. और कहाँ तक जाने की ज़रूरत है उनका? Different parts of the plants till the leaves. So xylem का function क्या है? Water and minerals को roots से ले करके different parts of the plants or you can say till leaves, it is transported with the help of xylem. Clear? Xylem transports water and minerals from the roots. So keep this in your mind. It's very important to remember xylem का काम क्या है? Xylem का काम है आपका transportation of water and minerals from roots to the different parts of the plants. Clear? In the similar way, phloem cells are also long tubes for transportation of food. Phloem transport glucose made in the leaves to the other parts of the plants. Now, if I ask you one thing, कि food में plant में food का formation कहाँ होता है? Your answer will be in the leaves by the process of photosynthesis using carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll. Glucose is formed and oxygen is released. Clear? तो ये जो synthesizing part है leaves, तो substances जो हैं वो leaves से कहाँ transport होते हैं? To the different parts of the plants as per the requirement. Clear? So these are transported from leaves to the different parts of the plant as per the requirement with the help of a tube, with the help of a vessel that is called as phloem. यानी आपको पता चला xylem क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल्स. और phloem क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? phloem ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल. क्लियर? xylem ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड phloem ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल. xylem कहाँ से? रूट से कहाँ तक? different parts of the plants as per the requirement, or you can say till leaves.
or phloem from leaves to the different parts of the plant till you can say till roots. Clear? Next, here you can see the blue part is xylem. xylem में देखो आप एक बार पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है. It is maintaining the one way flow from roots to the different parts of the plant. जबकि जो phloem आपका येलो कलर से दिखाया हुआ है, it has got bi-directional flow in the both direction. ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है. Clear? So you have to keep a difference. Keep in mind the difference between the xylem and phloem, and the difference is that xylem water transport करता है, phloem food transport करता है. Xylem transportation is unidirectional from roots to different parts of the plant, but phloem transportation is bidirectional in both the direction, upward as well as downward direction. Clear? Next is transportation of water and minerals. Now how are these water and minerals transported? We will see this. Water and mineral salts dissolved in a water enter the plant through the thin roots present in the roots. Now what happens? In the roots we have got root hairs. अगर हम root का बात करें, suppose this is the root, so what happens? These are the root hairs. इनको हम root hairs बोलते हैं. Clear? Root hairs are the outgrowths from the layer of outer cells of the root. The root hair increases the surface area of the root for the absorption of water and minerals. Now what happens? जितना छोटा छोटा डिवीज़न होता है, जितने छोटे छोटे रूप में आप डिवाइड करोगे, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इंक्रीज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. ठीक है, जितना छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एब्जॉर्प्शन के लिए. क्लियर? सो दिस रूट हेयर्स ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि वाटर और मिनरल्स का आसानी से इजीली एब्जॉर्प्शन हो सके. क्लियर? नेक्स्ट इज वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस. और जो वाटर है वो किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ osmosis. Now let us see what is osmosis and what is diffusion. We will see these two things. Osmosis क्या है? Osmosis is the process of passage of water across a semi-permeable membrane from an area where there are more water molecules to an area where there are less. यानी कि osmosis क्या है? Higher concentration से lower concentration की ओर जब कभी भी water molecules move करते हैं, किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज ऑस्मोसिस. तो आपको तीन चीज़ याद रखना है. पहला चीज़, मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे. दूसरा चीज़ कि किसके थ्रू मूव करेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM के थ्रू मूव करेंगे. ठीक है? और थर्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. क्लियर? तीन चीज़ याद रखना है. फर्स्ट क्या है? मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. सेकंड, ये मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एंड थर्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. वहीं अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ से गायब हो जाए, केवल मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करे, तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन. क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है. अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो वो ऑस्मोसिस नहीं, फिर वो डिफ्यूज़न हो जाएगा. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन दैट विल अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयंस टू पास थ्रू इट बाय डिफ्यूजन. और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? एक तरह का मेम्ब्रेन है जो अपने थ्रू, अपने के द्वारा, मानो ये एक मेम्ब्रेन है तो ये अपने थ्रू केवल सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को पास करने देता है. ठीक है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जो अपने थ्रू केवल सेलेक्टेड सब्सटेंस को पास करने देते हैं. क्लियर? इन केस ऑफ द पोटैटो द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मोर आउटसाइड देन outside the potato than inside it, as the inside solution has sugar dissolved in water. Now what happens? जब आप एक पोटैटो का एग्जांपल लो और एक ग्लास ऑफ अ बकेट ऑफ वाटर एंड कीप पोटैटो इन दैट, व्हाट हैपेंस? पोटैटो विल स्वेल अप. रीज़न कि बाहर में पानी का कंसंट्रेशन बहुत
ज़्यादा है और अंदर में पोटैटो के अंदर में पानी का कंसंट्रेशन कम है। तो अभी हमको लोगों को पता चला है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स बकेट ऑफ वाटर से पोटैटो के अंदर जाएंगे, इसके कारण क्या होगा, इट विल स्वेल अप। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल इन द सेम वे। और वाटर भी कुछ इसी तरह एब्जॉर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होता है और रूट में वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। ठीक है, सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रूट्स में वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। और हम लोगों को पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। क्लियर? तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, सॉइल में, और लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, रूट्स में। तो क्या होगा, सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल रूट्स में मूव करेंगे। क्लियर? The roots here are in close contact with the water surrounding the soil particles. Normally water molecules are more crowded outside the root hairs than inside it. मैंने आपको बताया कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज़्यादा क्राउडेड हैं वो रूट हेयर्स के बाहर में। अगर हम ऐसे रूट हेयर्स माने तो वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन इधर और इधर ज़्यादा है इस जगह के कंपैरिजन में, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं। तो क्या होगा, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ आने का और यहाँ से यहाँ आने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। दे देन मूव थ्रू द रूट टिश्यूज टू द जाइलम इन द रूट। और इसके बाद क्या होता है, वो रूट टिश्यूज से जाइलम के थ्रू मूव करते हैं अप टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्लियर? द रूट सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द सॉइल। दिस प्रोड्यूसेस द force that pushes water upward. Now what happens, since there is a continuous absorption of water and minerals, continuous absorption of water and minerals हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, एक upward force डेवलप होगा। ठीक है, जो substances को ऊपर मूव करने में हेल्प करता है। The evaporation of water from the leaves, that is known as transpiration, also produces a pulling force that causes the water to move upward. Also, next thing that pulls water upward is transpiration. Clear? Transpiration के कारण water molecules ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींचता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन, सपोज करो आप ये लीव्स है और ये आपका स्टेम का एक सेल है, तो लीव से पानी कॉन्टिन्यूसली बाहर जा रहा है, यानी कि यहाँ लो कंसंट्रेशन हो जा रहा है, और यहाँ पे आपका पानी जो इससे ज़्यादा है, तो हमको पता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट टू द स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड अदर parts of the plant takes place through xylem, and this upward movement of the sap that contain water and mineral is called ascent of sap. और ये आपका जाइलम के थ्रू क्या मूव करता है, वाटर और मिनरल्स, और इस प्रोसेस के थ्रू ये वाटर और मिनरल्स मूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है। व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस एज, वी कॉल दिस प्रोसेस एज अ एसेंट ऑफ सैप। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब ये फूड मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, फूड प्रिपेयर कहाँ होते हैं, they are prepared in the leaves. Clear? Leaves are known as food factory of the plant. तो ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से फूड मटेरियल जो लीव्स में प्रोड्यूस होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट प्रोसेस एज ट्रांसलोकेशन। मीन्स ट्रांसलोकेशन इज द दैट प्रोसेस विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल from leaves to the different parts of the plants. Clear? और ये किसके हेल्प से होता है, फ्लोएम सेल्स के मदद से बोलते हैं। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू। क्लियर? फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्लियर? फ्लोएम सेल्स में क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, फ्लोएम सेल्स हैव गॉट सीव ट्यूब्स दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल। Now, one more thing, the difference that is there present between xylem and phloem is the content of phloem
the content of phloem can move in upward as well as in downward direction, whereas water in xylem can move only in upward direction. यानी आपको याद रखना है कि xylem में केवल यूनिडायरेक्शनल एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, जबकि फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होता है इन डाउनवर्ड एज वेल एज इन अपवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन xylem एंड फ्लोएम. क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन. ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन आपको बहुत पहले से पता होगा. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीव्स. जो आपके प्लांट्स हैं, लीव्स हैं प्लांट्स में, उनसे वाटर मॉलिक्यूल्स का जब इवापोरेशन होता है, ठीक है, व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स आर इवापोरेटेड, दे आर लॉस्ट. क्लियर? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज evaporation. Large quantities of water are absorbed by plant for photosynthesis. All this water is not used by plant. The excess water escape in the form of water vapor, mainly through stomata present in the leaves. और जो स्टोमेटा प्रेजेंट है आपके लीव्स में, उनका दो फंक्शन है. पहला ट्रांसपिरेशन, क्लियर, एंड सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस के एक्सचेंज में भी ये मदद करते हैं. ये CO2 को अंदर लेने में और O2 को बाहर भेजने में ये मदद करते हैं. क्लियर? दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. और वो प्रोसेस जिसके थ्रू वाटर वेपर के रूप में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस प्रोसेस एज ट्रांसपिरेशन. क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन. Transpiration of water from leaves create a suctional pull which pulls water up the plant from the roots. It is strong enough to force water up high trees. The mechanism is similar to the pull created by you when you suck a drink using a straw. As water is given out by transpiration, more water is absorbed and transpiration also cools the plant. Now what happens? मैंने आपको बहुत पहले बताया है क्या होता है. ये leaves हुआ, suppose this is leaves and this is stem. तो लीव से लगातार पानी लॉस्ट हो रहे हैं, यानी वाटर का या कहाँ यहाँ क्या हुआ? लो कंसंट्रेशन हुआ, यहाँ हाई कंसंट्रेशन हुआ. तो ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होगा? मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे. क्लियर? और एक चीज़ आपको और याद रखना है, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट. यानी ट्रांसपिरेशन किस चीज़ में मदद करते हैं? ट्रांसपिरेशन कॉजेज कूलिंग इन प्लांट्स. अंडरस्टूड? If water is lost through transpiration more quickly than it is absorbed by root hairs, the plant cell will lose water, the leaves, stem and flowers will droop. This is called wilting. और अगर rate of evaporation or rate of transpiration, rate of absorption of water से ज़्यादा हो, यानी अगर evaporation ज़्यादा हो absorption से, तो क्या होगा? प्लांट्स में पानी की कमी होगी, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स का कमी होगा. ठीक है? जिसके कारण प्लांट क्या करेगा? विल्ट करेगा, मुरझाना. ठीक है? प्लांट विल ड्रूप इट लीव्स. क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एवरीवन. थैंक यू. प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक्स प्रॉपर्ली. थैंक यू एवरीवन.